Our correspondent Bikramjit giving us inputs from the Lingaraj temple, and we are bringing those live visuals to you. Prime Minister's cavalcade has arrived at the venue, and any time now Prime Minister is likely to step out. In fact, he is there and he's waving at all the people who've come to receive him. Yesterday we saw a huge public warmth and welcome that he received at the roadshow, and today also we're bringing those visuals to you as Prime Minister is being felicitated at the gates of the famous Lingaraj temple. I'd like to inform our viewers that Lingaraj temple is one of the largest and about 1,000 years old temple that is situated in Bhubaneswar, and Prime Minister, after felicitating the king of the freedom fighters, is now going to pay his respects at the famous temple. And here we're bringing those visuals to you where authorities are welcoming Prime Minister Modi, and he is in his characteristic style waving at all the support, all the people who've come to also see the Prime Minister. We're bringing those visuals to you live from outside the Lingaraj temple. It is about 1,000 years old temple that is situated in the temple city. It is said that it was built by the rural Yayati Kesari in the 7th century, who shifted in fact his capital from Jaipur to Bhubaneswar, and we're bringing those visuals to you. Prime Minister accepting all the excitement that he has around him of the people who are happy to see him, excited to welcome him at the famous temple. And you can see the beautifully decorated gates of the temple town. And Prime Minister, as we speak, is entering the gates and is going to pay his respects to the Godhead. And we see that arrangements have been made by the police to ensure that the crowd does not go out of control. There is an overwhelming excitement among the masses. We saw a glimpse of that yesterday as well when Prime Minister was holding his roadshow in Bhubaneswar, and today as he visits the temple town. And we're bringing those visuals now from the inside of the temple. Prime Minister being welcomed in a traditional way. And Bikramjit, our correspondent, is again joining us on phone line. Bikramjit, give us inputs about this temple. We're bringing those live visuals to our viewers about Prime Minister being welcomed in the premises. देखिए, ये मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये मंदिर जो है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारतवर्ष में, उनमें ये ज्योतिर्लिंग का महाराज कहा जाता है। इनको लिंगराज महाराज कहा जाता है। इसकी जो इसके बनाने का जो समय अवधि जो इतिहास में दर्ज है वो है 1090 से 1104 के बीच में। लेकिन जो इतिहासकार, जो कुछ इतिहासकार इसको 6वीं शताब्दी के जो पत्र आते हैं तो उसमें भी इसका लिंगराज मंदिर का जिक्र आता है। तो तकरीबन ये जो मंदिर है ये तकरीबन 1400 बरस पुराना जो है माना जाता है, और इसको जो है ललकाटू केसरी जो है उन्होंने इसका निर्माण जो है 670 के करीब जो है बनाने का शुरू किया था, जब यहाँ पर जो है स्वयंभू लिंग निकलकर जमीन से आए थे। तो ये मान्यता है कि उसके बाद से जो है इसको जो है बनाने की शुरुआत की गई, और यहाँ की जो मान्यता है और एक इसको जो है पूरे इलाके को जो है एक क्रामा क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। और इसकी मान्यता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जो अपने धार्मिक प्रवृत्ति के चलते जो है तमाम जहां भी जाते हैं वहां मंदिर के दर्शन करते हैं। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से वो पिछले दिनों 8 मार्च को जब उन्होंने गुजरात का दौरा किया था तो उस समय भी उन्होंने वहां पर जो है सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, वहां पूजा अर्चना की थी। वहां उनके साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह थे, वहां जो मंदिर के ट्रस्टी हैं केशु भाई पटेल वो भी वहां पर मौजूद थे, और वहां पर भी उन्होंने जो पूजा अर्चना करी थी और 15 से 20 मिनट तक वहां मंदिर के अंदर परिसर में रहे थे। इससे पहले भी जब आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से पहली यात्रा जो नेपाल की रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर पशुपतिनाथ के मंदिर गए थे। 2500 किलो उन्होंने वहां पर जो है चंदन की लकड़ी जो है दी थी, वहां पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना पशुपतिनाथ मंदिर में की थी। तो और इसी प्रकार से जिस पर जब नवरात्रे आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है व्रत रखते हैं, और सारे तमाम जो दिन रहते हैं नवरात्रों के वो तमाम दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्रत रखते हैं और केवल पानी ही पीते हैं। तो तमाम जिस प्रकार से उनका कठिन तप रहता है इन दिनों में धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर, वो सचमुच अपने दर्शकों को बताने के लायक है। इसके अलावा अगर बात करूं इस मंदिर की जिस प्रकार से संरचना की गई है, तो इस मंदिर में जो है जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप
देखते हैं कि यहाँ पर मंदिर के हाथे में पशु पक्षियों के सुंदर जो है चित्र भी है। मंदिर जो बड़ा एक मंदिर है, लिंगराज का मंदिर है, उसके अलावा पशु पक्षियों के चित्र भी उकेरे गए हैं। इसके अलावा जो है गणेश, कार्तिकेय और गौरी के मंदिर, जो छोटे मंदिर है वो भी हैं। कुल इस मंदिर का जो परिसर है, इस पूरे मंदिर के परिसर में 108 मंदिर, ऐसा माना जाता है कि 108 मंदिर जो है इस पूरे परिसर में है। इसके अलावा गणेश पूजा, गोपालनी देवी और नंदी का मंदिर भी जो है, जो भगवान शिव का वाहन है नंदी, उनका भी एक यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापना की गई है। तो पूरा जिस प्रकार से भगवान शिव का जो मंदिर रहता है उसकी प्रकार की, और इस मंदिर में जिस प्रकार से यहाँ पर एक पताका भी लगाई गई है। तो पताका अमूमन जो है आप देखते होंगे जब मंदिरों में जाते होंगे तो एक पताका ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर दो पताका, यानी कि एक सफेद रंग की और एक लाल रंग की पताका जो है मंदिर के जो सबसे ऊंची जो गुंबद है उस पर लगी हुई है। उसके साथ साथ अमूमन जो है भगवान शिव को जो माना जाता है कि भगवान शिव का जो है त्रिशूल के तौर पर उनको जब देखा जाता है तो उनके साथ जो होता है त्रिशूल उनके साथ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब गुंबद में जब पताका लगी हुई है उसमें भगवान शिव का जो है वो धनुष लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से बाकी जो उत्तर भारत के या बाकी जो शेष भारत का जो अमूमन जो छवि रहती है भगवान शिव की, उसके अलग हटकर जो त्रिशूल के साथ उनकी छवि रहती है, यहाँ पर जो छवि उनकी दर्शाई गई है वो धनुष के तौर पर दिखाई गई है और उनको पताका के साथ जो है भगवान शिव का धनुष लगाया गया। आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से दंत कथाएं जो चलती है भगवान शिव के धनुष को लेकर, वो तमाम जो दंत कथाएं यहाँ भी जो है प्रचलित है। इसके अलावा अगर कारीगरी की मैं बात करूं तो इसकी जो कारीगरी है, जब इसका विकास कारीगरी का हो तो उसके ये इतिहासकार मानते हैं कि उसके बाद से ही जो है भारतीय जो मंदिरों का जो कारीगरी का विकास है उसमें जब शीर्ष पर ये मंदिर के निर्माण का होता है, उसके बाद से तमाम मंदिरों का विकास का शीर्ष माना जाता है। ऐसा इतिहासकार जो है अपनी लेखों में लिखते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये मंदिर जो है जो 180 फीट जो कुल ऊंचाई इस मंदिर की है वो केवल 180 फीट की है। तो तमाम जो, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की यहाँ पर आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत पुराना मंदिर होने की वजह से, और हालांकि पूरी मंदिर उड़ीसा में बहुत मान्यता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव का ये जो मंदिर है इसकी बहुत मान्यता है। जो भी भुवनेश्वर आता है, जो भी यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ मान्यता बहुत मानी जाती है ताकि यहाँ पर जो है, और जिस प्रकार से यहाँ मंदिर में तमाम परिसर में लोग, और लोगों की भी अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से लोग सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और तमाम लोग जो है जिस प्रकार से मोदी की एक झलक देखने के लिए जब आए, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लगाए। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब लोकप्रियता की बात करें तो वो न केवल बल्कि उड़ीसा में जो है बहुत लोकप्रिय है। जिस प्रकार से कल रोड शो देखने को मिला, वहां पर जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता जो है पूरा जो है शहर उमड़ आया था प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। मेरी कई लोगों से वहां पर बात हुई तो वो केवल भुवनेश्वर के ही लोग नहीं थे, बल्कि भुवनेश्वर से बाहर के भी लोग थे जो मोदी की एक झलक देखने के लिए आ रखे थे। तो तमाम जो लोगों की संख्या थी वो देखने को थी कि जितना एरिया था राजभवन एयरपोर्ट से लेकर राजभवन का, दोनों तरफ जो है लोगों की भारी संख्या देखने को मिल रही थी। उसी प्रकार से आज भी यह नजारा देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से लोग जो है, हालांकि बहुत संकरी यहाँ पर सड़क है, लेकिन उसके बावजूद जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी की झलक देखने को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जिस प्रकार से अपनी धार्मिक आस्था रखते हैं, वो केवल मंदिर के दर्शन करने के लिए ही प्रधानमंत्री आए हैं, और वो अंदर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जो पूजा अर्चना जब करते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बेलपत्री और तुलसी जो है उससे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसको यहाँ पर शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। उसके आधार पर यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलने के बाद जो है
है सीधा कार्यकारिणी में उनके जाने का कार्यक्रम है। वहां पर क्योंकि 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है भाग लेंगे। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी की रहने वाली है वो उनका उद्बोधन रहने वाला है, जब वो जो प्रधानमंत्री मोदी जो समापन 3 बजे के करीब जो है उनका उद्बोधन रहेगा। और क्या उद्बोधन उनका रहने वाला है, उड़ीसा के लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला है, भुवनेश्वर के लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला है, उड़ीसा की धरती से देश को क्या संदेश देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये देखने वाली बात होगी। और उसके साथ साथ जो है उसके बाद उनका गुजरात का भी दौरा है। लेकिन तमाम जिस प्रकार की गतिविधियां यहाँ देखने को मिल रही है लगातार, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह देखने को मिले या फिर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जो आम जन सैलाब प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए उमड़ा वो देखने को मिले, तो सचमुच जिस प्रकार से लोकप्रियता जो है और बीजेपी का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वो देखने की बात है। लेकिन इन सबके बीच हटकर जो प्रधानमंत्री मोदी की जो धार्मिक आस्थाएं हैं वो आज भी वैसी हैं जो वर्षों पहले होती थी। प्रधानमंत्री मोदी आज भी जो है नवरात्रों के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, किसी स्थान पर अगर जाते हैं तो वहां पर जो है मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। उनकी आस्थाएं जो लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनके साथ अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जोड़ते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वभाव ये काफी लंबे समय से रहा है कि नवरात्रों में व्रत रखना हो या फिर मंदिरों के दर्शन करना हो, और तमाम जगह वो जाते हैं तो इस प्रकार से वो मंदिरों के दर्शन करते हैं। पंजाब में अगर वो गए थे तो वहां पर उन्होंने जो है गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वहां पर वो जाकर उन्होंने माथा टेका था। इसके अलावा चाहे सोमनाथ मंदिर हो वहां जाकर वो पूजा अर्चना करते हैं। तमाम जब जो त्योहार आते हैं किसी भी धर्म के किसी भी जुड़े हुए तो तमाम लोगों को वो शुभकामनाएं भी देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का लोगों से जुड़ाव रहता है तो स्वाभाविक है कि लोगों की आस्थाओं से भी उनका जुड़ाव है और इसी वजह से वो तमाम जो उनके उत्सव होते हैं उनके साथ जो है उनको बधाइयां देते हैं और उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि इस समय प्रधानमंत्री मंदिर में है और मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना इस समय कर रहे हैं और पूजा अर्चना करते समय स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है तमाम आस्थाओं और रीति रिवाजों का ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हुए वो जो है लोगों के साथ जो है अपने आप Right, Bikramjit, also we'll be bringing those visuals. Let me remind our viewers from the famous Lingraj temple, those live visuals. Prime Minister Modi a short while ago offered prayers at the Sanctum Sanctorum of the Lingraj temple, and a short while ago he also clicked a photograph with all the priests of the temple, and that was a moment of excitement for all the people present there. And as we mentioned, as our correspondent Bikramjit was giving us details about this iconic temple, it is a marvel as far as architecture is concerned, but more importantly, the center of faith that this temple is, not just in Orissa, but in the entire nation. And Prime Minister Modi, after felicitating the families of the freedom fighters, has now visited this famous temple in Bhubaneswar. And we're bringing those live visuals to you. He took a round of the temple. He admired the architecture of the temple along with the head priest. A short while ago, he offered the prayers at the Sanctum Sanctorum. He's again going into one of the temple premises. Our correspondent did inform that this large premises, about 25,000 square feet, also includes a lot of smaller temples, about 108 temples within the premises of the larger Lingaraj temple. And as we just saw, that Prime Minister entered another temple to offer his prayers, and in the visuals we can also show the excitement that people have to catch a glimpse of the Prime Minister. One of the shots that we were showing you, we could see that people at their terraces in the residential areas near the temple are standing on their terrace to catch a view of the Prime Minister. And we see sounds of, we hear sounds of chanting, and there is a positive force at the temple as several priests have come together to show the temple around to the Prime Minister. He has offered prayers at the main Sanctum Sanctorum, and we're bringing those visuals to you live from Bhubaneswar. We are showing you the visuals of the iconic Lingaraj temple. As the name suggests, it is dedicated to Lord Shiva, but the temple premises also has, as a correspondent mentioned, about 108 smaller temples. It is a 1,000-year-old temple.
it is not just the center of religious faith, but this temple, the architecture is also considered an important historic monument. In fact, if I can tell you that inscription from the period of Kalinga king, Ananga Bhima III from the 13th century are also visible, and there we see Prime Minister interacting with the priest. Bikram, once again, if you're with us, we see a lot of excitement among the masses. People are climbing up on their terraces to catch a glimpse of the Prime Minister. Give us a mood that is there at the temple premises to see the Prime Minister. And we can also see that he's now going to enter his comments on the visitors book. Bikramjit. देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वो मंदिर का गुंबद है, इस पे 2 पताका लगी हुई है। अमूमन जो मंदिर रहते हैं उसमें एक पताका लगी होती है, तो हरिहर के नाम से जो है ये कहा जाता है। यहाँ पर जब यहाँ पर उद्बोधन किया जाता है तो एक जो 2 रंग की पताका है, एक सफेद रंग की पताका है और एक लाल रंग की पताका है। तो जो 2 पताका है ये जो है एक शिव का प्रतिरूप है और एक विष्णु का प्रतिरूप है। तो वो जो दोनों का शिव और विष्णु का जो संयुक्त रूप है उसको यहाँ ये जो है लिंगराज उसका प्रतीकात्मक रूप है। और जहां तक कि बाहर लोगों की अगर बात करें तो बाहर लोगों में जो है काफी उत्साह है। यहाँ लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार नारे लगा रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने प्यारे प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग जो है एक झलक देखने के लिए काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब मंदिर में जाने लगे तो उन्होंने अपने यहाँ लोगों को निराश नहीं किया, उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया था और उसके बाद वो अंदर मंदिर में गए थे। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं, वो अगवानी के लिए आए थे प्रधानमंत्री मोदी की। वो खड़े थे मंदिर के बाहर और वो साथ लेकर गए हैं प्रधानमंत्री को अंदर मंदिर में। और तमाम जो यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी हैं, मंदिर के जो देखभाल करने वाले लोग हैं, वो तमाम प्रधानमंत्री के साथ अंदर गए हैं। हालांकि क्योंकि प्रधानमंत्री का पूजा का ये निजी कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री चूंकि सब जगह कहीं भी जाते हैं तो वहां का जो प्रसिद्ध मंदिर होता है उसके दर्शन जरूर करते हैं। तो उसी के कड़ी में ये मंदिर के दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जो मंदिर है तो उसमें जो है अंदर लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी, केवल जो है लोगों को बाहर ही रहने की परमिशन थी। तो उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को देखने की ललक, एक झलक पाने के लिए लोग काफी भारी संख्या में बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि सब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना के बाद जो है मंदिर में माथा टेकने के बाद जो है बाहर आते हैं तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखेंगे। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है हमेशा अपने जो लोग रहते हैं, जो प्रधानमंत्री को देखने की ललक में जो दर्शनाभिलाषी होते हैं, उनको निराश नहीं करते हैं, हाथ हिलाकर हमेशा अभिवादन करते हैं। ऐसा ही उन्होंने आते वक्त भी किया और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर प्रस्थान करेंगे तो वहाँ तब भी वो जो है यहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो लोगों की संख्या रहती है वो काफी संख्या रहती है दर्शनाभिलाषी, क्योंकि 12 जो पूरे भारत में जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये जो है इसको महाराज जो कहा जाता है, यानी कि सब जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे ये श्रेष्ठ महाराज ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसीलिए इनको जो है लिंगराज महाराज के नाम से जो है जाना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो स्वयंभू उत्पत्ति मानी जाती है कि ये जमीन से अपने आप जो है इनकी स्वयंभू उत्पत्ति हुई है और अपने आप जो है निकलकर बाहर आई है। और इसीलिए लोगों की आस्था का केंद्र भी है और तमाम जो लोग आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करते हैं। लेकिन इस मंदिर के साथ साथ जो है गणेश, कार्तिकी और गौरी के मंदिर और जो छोटे मंदिर हैं, हालांकि वो भी आसपास छोटे मंदिर हैं, वहां पर भी दर्शन किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है जो मंदिर की जो पानी का इसमें एक कुंड भी है जो पीछे की तरफ है, तो वहां पर जो है लोग जो है पवित्र होते हैं, पानी से अपने ऊपर जो है सांस करके अपने को स्वच्छ करते हैं। तो तमाम चीजें जो है मंदिर से जुड़ी हुई लोगों की कई आस्थाएं हैं, चाहे आर्किटेक्ट के हिसाब से देखें या फिर धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से देखें, तो तमाम लेकिन लंबे समय से, और क्योंकि ये 6वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था तो इसी हिसाब से
तकरीबन 1300-1400 बरस पुराना ये मंदिर है और लगातार जिस प्रकार से इस मंदिर का आर्किटेक्ट, हालांकि कुछ हिस्सा इस मंदिर में नया भी बनाया गया है, कुछ हिस्से को पुराने हिस्से को मेंटेन भी किया गया है मंदिर को आर्किटेक्ट के हिसाब से, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। भारत के जो पुराने मंदिर हैं उनमें से एक ये जो है पुराना मंदिर, और पुरानी धरोहर को किस प्रकार से मेंटेन रखा जाए उसका भी एक ध्यान जो है इस मंदिर में रखा गया है। तो उसके हिसाब से जो है मंदिर में तमाम जो चीजें हैं, कुछ पुराने जो 1300-1400 साल पुरानी जो आकृतियां बनी हुई हैं, जो ढांचे बने हुए हैं मंदिर में, उनको सजोकर रखा गया है। लेकिन कुछ हिस्सा जो है मंदिर में नया भी बनाया गया है, लेकिन जो कारीगरी का नमूना है जो दर्शाता है कि किस प्रकार से 1300-1400 साल पहले भी जो है लोग किस प्रकार से जो है कलाकृतियां बनाते थे, किस प्रकार से पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाते थे, किस प्रकार से संपन्नता थी उसमें आर्किटेक्ट को लेकर, वो एक दर्शन जो है ये मंदिर करवाता है। और तमाम जो चीजें हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्योंकि उसके पहले के जो अभिलेखागार है, क्योंकि जिस प्रकार से 6वीं शताब्दी के बाद से ही उत्थान शुरू हुआ भारतीय मंदिरों के जो आर्किटेक्ट को बनाने का, उसमें जो है जब शिखर पर पहुंचा तो तब तक ये मंदिर जो है अपनी आस्था का निर्माण कर चुका था। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से अगर भारतीय इतिहास की, भारतीय धार्मिक इतिहास की अगर बात होती है, भारतीय धार्मिक इतिहास का जिक्र आता है तो उस समय इस लिंगराज मंदिर का जिक्र जरूर आता है कि जिस प्रकार से इस मंदिर की में लगातार जो है लोगों मंदिर में लगातार लोगों का आना जो जुड़ा रहा है, इतने वर्षों से लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों की मान्यताएं जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, लोगों की आस्थाएं यहाँ पूरी होती है, लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। और इसी वजह से ये लगातार मंदिर जो है ना केवल पूर्वी भारत में, ना केवल उड़ीसा में, बल्कि पूरे भारत में जो है ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है। और लोग जो भी भुवनेश्वर आते हैं या उड़ीसा आते हैं तो भगवान यहाँ पर लिंगराज के दर्शन जरूर करने आते हैं। और जो लोगों की आस्थाओं की जब बात होती है तो स्वाभाविक है कि तमाम जो आर्किटेक्ट है या तमाम जो लोग हैं वो जो आस्था है उनको संजोकर रखने के भी प्रयास करते हैं। और यही एक वजह है कि इतनी पुरानी जो मंदिर है उसको सजाया गया है, उसको संजोकर रखा गया है, इतने सालों से जी विक्रम भी रखा गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख सकते हैं लिंगराज मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत करते हुए। और विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को बता दें कि लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा में, ये राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और यहाँ के पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है और भगवान तिरुभुवनेश्वर को समर्पित है ये मंदिर। और इस वक्त जो मंदिर की वास्तुकला आप देख रहे हैं, ये 1090 से 1104 के बीच में ये बना है, लेकिन इसका बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो 1400 साल पुराने हैं। 6वीं शताब्दी के जो लेख हैं उसमें भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। और एक धार्मिक कथा है कि लिट्टी और वसा नाम के दो भयंकर राक्षस थे जिनका वध देवी पार्वती ने किया था। और जब वध किया था देवी पार्वती ने, उसके बाद देवी पार्वती को प्यास लगी तो शिवजी ने यहाँ पर एक कुआं बनाया और सभी जो पवित्र नदियां हैं उनको यहाँ पर बुलाया। और यहीं पर बिंदु सागर एक सरोवर है, जो पवित्र नदियां जिनको भगवान शिव ने यहाँ पर बुलाया था। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु सागर सरोवर है और उसके निकट ही ये लिंगराज मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं लिंगराज मंदिर के भव्य प्रांगण में। और इस मंदिर में कई देवी देवताओं की जो मूर्तियां विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी अगर हम वास्तुकला की बात करें या यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था की बात करें तो इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर के भव्य प्रांगण से बाहर आते हुए, और उनके साथ ओडिशा बीजेपी के कई गणमान्य नेता भी मौजूद हैं।
साथ ही वहाँ पर जो मंदिर समिति और मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर प्रशासन की ओर से भेंट भी दी जा रही है और आसपास में काफ़ी आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये आप दृश्य देख सकते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर इन लोगों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। तो ये लिंगराज मंदिर को आप देख रहे हैं, भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। इसे लला टेडुकेशरी ने 617 से 657 ईस्वी के बीच में बनवाया था और काफ़ी संख्या में वहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजर रहे हैं, उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं है, ये आप देख सकते हैं। विक्रमजीत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, वहाँ पर काफ़ी आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल विक्रम वहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री को इसके बाद बीजेपी की मीटिंग में जाना है, तो विक्रम इस वक्त वहाँ पर नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर के भव्य प्रांगण से बाहर निकल चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी संख्या में आम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आपको अगर इस मंदिर की पूजा पद्धति के बारे में कुछ बताएं तो गर्भगृह के अलावा जगमोहन और भोग मंडप में सुंदर सिंह मूर्तियों के साथ देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं वो सबसे पहले बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं और उसके बाद क्षेत्रपति अनंत वासुदेव के दर्शन किए जाते हैं। और इनका भी निर्माण काल 9वीं से 10वीं सदी का माना जाता है। गणेश पूजा उसके बाद की जाती है और गणेश पूजा के बाद गोपालनी देवी, फिर शिवजी के वाहन नंदी की पूजा और उसके बाद लिंगराज के दर्शन के लिए मुख्य स्थान में प्रवेश किया जाता है। वहाँ पर 8 फीट मोटा और करीब 1 फीट ऊंचा ग्रेनाइट पत्थर का स्वयंभू लिंग मौजूद है और इसी कारण इस मंदिर का नाम लिंगराज मंदिर पड़ा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी लिंगराज मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल चुके हैं।